इस लेक्चर में हम दो सब ग्रुप डिस्कस करेंगे. वन ऑफ देम इज नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप एंड द सेकंड वन इज सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप. और इनफैक्ट ये ग्रुप नहीं, हम एक सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर डिफाइन करेंगे और फिर प्रूव करेंगे कि वो जो सेट हम डिफाइन करेंगे दे आर इनफैक्ट सब ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप G. First, with the definition of normalizer, let H is a subgroup of G, then normalizer of H in G is defined as the following set. It consists of all those elements G in the group G such that the left coset of H determined by this element coincides with the right coset of H determined by this element. And the very first consequence or the observation or the exercise is that this normalizer of H in G is not only a subset of G but it is a subgroup of G. यहाँ पे हम सब ग्रुप क्राइटेरिया यूज़ करेंगे. आपने दो क्राइटेरिया क्लास में डिस्कस किए थे. द फर्स्ट वन इज़ कि अगर किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को किसी ग्रुप का सब ग्रुप प्रूव करना हो तो वी चेक द क्लोजर प्रॉपर्टी एंड द बेसिस ऑफ इनवर्सेस. एंड द सेकंड वन इज if H is a non-empty subset of a group G, then H is subgroup of G. If A and B belongs to H implies that A times B inverse belongs to H. तो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसको हम यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए लेट्स टेक टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट G1 एंड G2 बिलोंग टू दिस सेट. तो अगर ये एलिमेंट जो है इस सेट को बिलोंग करते हैं तो दैट मीन्स दे सैटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी. इन एलिमेंट जो लेफ्ट कोसेट है दे कोइंसाइड विद द राइट कोसेट. और हमने प्रूव करना है कि G1 G2 बिलोंग्स टू दिस सेट. तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हम एज का लेफ्ट कोसेट कंप्यूट करें G1 G2 से so it coincides with the right coset. So let's see the computation. G1 G2 H is equal to G1 into G2 of H. Because G2 is an element of this set, so this left coset is equal to this right coset. Again हम इसको जो decompose कर सकते हैं G1 times H and again use that this left coset G1 H is equal to the H G1. And so अगर आप इसको लेफ्ट साइड से देखें और इसको राइट साइड से देखें so we have concluded that G1 G2 H is equal to H times G1 G2. So this implies G1 G2 is a candidate of this set, so closure property is satisfied. Secondly हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हम इस सेट से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज कर लें तो उसका इन्वर्स भी इसी सेट के अंदर मौजूद है. That G belongs to normalizer of H in G. तो अगर ये एलिमेंट इस सेट का कैंडिडेट है तो उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. That is left coset is equal to the right coset. Now see the idea. हमें ये प्रूव करना है कि G इन्वर्स भी नॉर्मलाइजर ऑफ H in G में मौजूद है. तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम G इन्वर्स की हेल्प से इसका लेफ्ट कोसेट कंप्यूट करें देन इट कोइंसाइड्स विद द राइट कोसेट. सो इस इक्वेशन में हम बोथ साइड से G इन्वर्स एंड G इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे. पोस्ट मल्टीप्लाई एंड प्री मल्टीप्लाई. सो हियर इज सिंप्लीफिकेशन. G इन्वर्स टाइम G is equal to the identity. So left side पे we are remain with H G inverse. And on the right hand side G times G inverse is equal to identity. So on right hand side we are remain with G inverse H. So this left coset is equal to this right coset and hence G inverse belongs to normalizer of H in G. तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी भी और एक्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस भी. So that means normalizer of H in G is a subgroup of G using the subgroup criteria. Exercise. Let G is an abelian group, then prove that normalizer of H in G is equal to G for every subgroup H. Most simple exercise है. Since normalizer of H in G is subgroup of G, so हमारे पास एक conclusion तो बहुत obvious है that this set is a part of G. इक्वलिटी प्रूव करने के लिए हमें जो इसका जो रिवर्स इनइक्वलिटी है वो प्रूव करनी है. That means G is a part of normalizer of H in G. So take arbitrary G belongs to G and compute the left coset. Because G is abelian, so we can commute these two elements.
we can write GH as HG, where H is arbitrary element of H, but this one is equal to the set HG. So left coset जो right coset के equal है, so that means G belongs to the normalizer of H, but G was an arbitrary element of G, और ये किस सेट में इंक्लूड हो गया, नॉर्मलाइजर ऑफ H in G, hence G is a subset of this normalizer of H in G. So इन दो inequalities को अगर हम combine करें, so we get the result that normalizer of H in G is equal to G. So it's a common observation is कि हमें इसका जो है कन्वर्स पार्ट वो भी चेक करना चाहिए. कन्वर्स पार्ट की सेंस क्या बनती है, अगर अबिलियन ग्रुप है तो उसमें किसी भी सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर ग्रुप के कोइंसाइड करता है, द फुल ग्रुप और द पेरेंट ग्रुप. सो द कन्वर्स इज दैट, सपोज हमारे पास एक पेरेंट ग्रुप G है और एक उसका सब ग्रुप H है, सच दैट नॉर्मलाइजर ऑफ H in G कोइंसाइड विद द G. द क्वेश्चन इज डज इट मीन दैट G इज अबिलियन, क्या ज़रूरी है कि G अबिलियन होगा? तो द आंसर इज नो. हियर द काउंटर एग्जांपल. Let's take G is the group plus minus 1 plus minus I plus minus j plus minus k, the group of invertible quaternions or unit quaternions. जब हमने सब ग्रुप लेटिस पढ़ा है तो वहाँ हमने डिस्कस किया इसके जो जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं, दे आर लिस्टेड एज आइडेंटिटी 1 minus 1, 1 minus 1 I minus I, 1 minus I j minus j, 1 minus 1 k minus k, and H6 is a G itself. So हमारे पास टोटल इसके जो है इस G ग्रुप के 6 पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं. एंड द ऑब्जर्वेशन इज दैट इसमें से हम किसी भी ग्रुप का अगर हम नॉर्मलाइजर कंप्यूट करें दैट कोइंसाइड विद G. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक जो है वो सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर कंप्यूट किया, दैट इज H3. अगर मुझे H3 नॉर्मलाइजर कंप्यूट करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे H3 के लेफ़्ट और राइट कोसेट्स कंप्यूट करने और मुझे वो एलिमेंट चूज़ करने हैं जिनकी हेल्प से लेफ़्ट कोसेट कोइंसाइड विद द राइट कोसेट. सो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट कोसेट कंप्यूट किए हैं और राइट साइड में राइट कोसेट कंप्यूट किए हैं. सो लेट्स सी, 1 times H3 is equal to H3 times 1. This means 1 belongs to normalizer of H in G. Similarly, minus 1 times H3 is equal to H3 times minus 1. This means minus 1 belongs to the normalizer of H3 in G. And similarly for other elements I, J, K, minus I, minus J, minus K. As a set, ये सेट इस सेट के इक्वल है, तो दैट मीन्स लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट के इक्वल है, and that means H is a candidate for the normalizer of H3 in G. So this implies normalizer of H3 in G. Similarly, we can compute and conclude that normalizer of H1, normalizer of H2, normalizer of H4, normalizer of H5, normalizer of H6, they all coincide with the set or with the group G. लेकिन G itself जो है वो नॉन अबिलियन है, बिकॉज I times J is different from J times I. यहाँ मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्प्लिकेट नहीं है, इसका मतलब है कि ग्रुप जो है वो नॉन अबिलियन है. लेकिन इस ग्रुप की खास बात ये है कि इसमें किसी भी सब ग्रुप का अगर हम नॉर्मलाइजर कंप्यूट करें दैट कोइंसाइड विद द पेरेंट ग्रुप G. Let's see another example. G is generated by two elements A and B. The set of relations are A cube is equal to B square is equal to AB square is equal to identity. Or we know that this group is S3. एक मैंने सब ग्रुप लिया है that is equal to identity and B. ये सब ग्रुप का ऑर्डर जो है 2 है. The subgroup of G and the question is compute normalizer of H in G. So above example की तरह हम इसमें क्या करेंगे, इस ग्रुप के लेफ़्ट और राइट कोसेट्स कंप्यूट करेंगे और वो एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जिनकी हेल्प से लेफ़्ट कोसेट कोइंसाइड करता है राइट कोसेट के साथ. फॉर एग्जांपल E के साथ हमने लेफ़्ट कोसेट कंप्यूट किया
and these two sets are equal. This implies E belongs to normalizer of H in G. A की हेल्प से कोसेट कंप्यूट किया तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल नहीं आए, दैट मीन A इज नॉट इन नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G. A स्क्वेयर की हेल्प से लेफ्ट और राइट कोसेट कंप्यूट किया, these two sets are different, that means A square doesn't belong to normalizer of H in G. B की हेल्प से कोसेट कंप्यूट किया, so left and right coset are different, that means left and right coset coincide, that means B is in normalizer of H in G. And similarly A B doesn't belong to normalizer of H in G, and A square B doesn't belong to normalizer of H in G. सो हमारे पास ये 6 एलिमेंट की हेल्प से हमने सारे लेफ्ट और राइट कोसेट कंप्यूट किए हैं. ओनली आइडेंटिटी एंड बी fall in the normalizer of H in G, and hence normalizer of H in G is equal to identity and B, और itself H के इक्वल आ गया. वैसे भी it's a simple consequence that H is a subset of normalizer of H in G. सो अबव एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो गया होगा, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप G गिवन हो, ऑफ कोर्स नॉट अबिलियन ग्रुप, बिकॉज अबिलियन के केस में तो कंप्यूटेशन जो है वो इंटरेस्टिंग है ही नहीं. अबिलियन के केस में अगर आप किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मलाइजर कंप्यूट करेंगे दैट विल कोइंसाइड विद द पेरेंट ग्रुप G. सो अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ भी ऐसा है किसी भी असेसमेंट में कि ए G इटसेल्फ इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप और एज उसका कोई सब ग्रुप गिवन है, आपको जो है उसका नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G कंप्यूट करना आना चाहिए. Thank you so much. Here we end the first part of normalizer of H in G part.